ہمارے آج کے مہمان کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ ادبی دنیا کے مشہور مصنف قیوم نصرت نے اپنا قیمتی وقت الف نیوز کو دیا اور اپنی زندگی کے بارے میں تبصرہ کیا۔ آج کا پروگرام انہی کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ملائیں گے ادبی دنیا کے مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں کیا رائے دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس پروگرام میں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آسمان ادب کا چمکتا ستارہ یہ قیوم نصرت صاحب جو ہیں ادبی دنیا کے شاہ سوار ہیں، کیونکہ ان کے جتنے بھی کلمی دوست ہیں، محترم رضوان صدیقی صاحب ہیں، نصرت مرزا صاحب ہیں، اور جو ایک ہمارے درینہ دوست تھے ممتاز جنیدی جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ بھی ان کے بڑے گہرے دوست تھے، میرے بھی گہرے دوست تھے۔ تو ادبی حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں پورے پاکستان میں، جو بھی انہوں نے کالم لکھتے ہیں تمام اخبارات میں اور وہ پسند کیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کتاب جو شائع کی ہے زیر قلم، یہ ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ پورے عالم اسلام میں لوگ ان کو لائک کرتے ہیں۔ میری تو یہ ذاتی تجویز ہے کہ ایسے جو ادب کے درختہ ستارے ہیں حکومتی ایوانوں میں ان کو شامل کیا جائے، تاکہ ایک مشیر کے طور پہ یہ آگے اپنی خدمات انجام دے سکیں، حکومت کا حصہ بنیں، تاکہ ان سے خدمات لیں، ان سے تجاویز لیں، ان کی رہنمائی لے حکومت، تاکہ آج جو لوگ بھٹک رہے ہیں اور آج جو نوجوان ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے ان میں ایک نئی امنگ پیدا ہو، کیونکہ ادب کی آبیاری ہو۔ آج ادب سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری قوم کے محسن ہیں، اور کیونکہ کتاب جتنی ہم پڑھیں گے، الف اخبار کا نیوز کا مطالعہ کریں گے، اور یہ اس کو گھر گھر ہم پہنچائیں گے، تاکہ وہ ان کی ایک اصلاح ہوگی۔ یہ ایک دعوت اصلاح ہے، یہ الف اخبار جو ہے، الف نیوز جو ہے، یہ ایک دعوتی پیغام ہے، تاکہ اس کا جو مشن ہے، اس کا جو پیغام ہے گھر گھر میں پورے پاکستان چپے چپے میں یہ پہنچے۔ یہ ایک صوفی ازم کا پیغام لانا چاہتے ہیں، اور ان کے صاحب درد لوگ ہیں، تاکہ جو مسائل حل ہوں اور یہ لوگوں کے کام آئیں اور حکومتی ایوانوں میں پوچھیں اور ان سے لوگ آ کے مشورہ لیں، اور تاکہ یہ دور دور نہ رہیں، یہ حکومت کے قریب رہیں۔ حکومت لوگوں کا حصہ ہے کہ ان سے آ کے مشورہ لیں، اور وہ کسی ایڈوائزر ہوں، منسٹر ہوں، وزیر ہوں، تاکہ لوگ ان سے رہنمائی لے کر وہ آگے بڑھیں۔ نفیس انسان ہے، بہت سادہ طبیعت کے انسان ہیں۔ آپ ایک ہمدرد بھی ہیں، لوگوں کی غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو، چاہے واقف ہو، ان کے دکھ درد میں ہر وقت پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دوست کا سن لیں تکلیف میں وہاں نہ جائیں، کسی کی جائز مدد کرنی ہو تو اس کی جائز مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ مدد بھی اس طرح کرتے ہیں ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ پڑے، اس ٹائپ کے۔ آپ نے ماشاءاللہ حیدرآباد میں آپ کی سماجی خدمات بہت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جناب نے رائٹر بھی ہیں، اور بزنس کے لحاظ سے بھی ہم بہت اچھا ساتھ رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم دوستی کے لحاظ سے تو ساتھ ہیں ہی، مگر بزنس میں بھی آپ کا ایک اچھا مقام ہے۔ آپ کی حیدرآباد چیمبر آف کامرس میں بھی بہت خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ FBR کے ساتھ بجٹ سیشن میں بھی رہے ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہماری کلیکشن ہوتی ہے وہاں بھی ہم ساتھ جاتے ہیں، وہاں آپ بھی رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں ان کے ساتھ۔ بہت اچھے نمونے سے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی، اسپیچ کی، اور ان کو اپنی رائے دی۔ وہ آگے ایک الگ بات ہے کہ گورنمنٹ اسے ایکسیپٹ کرے نہ کرے، مگر آپ نے اپنی پوری کوشش کو بروئے لاتے ہوئے، اور ہمیشہ ہر اچھے کام میں آپ پیش رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں حیدرآباد میں۔ آج کی شام الف نیوز کے نام جو کی گئی ہے، ہمارے ساتھ حیدرآباد کے جو ایک تعارف کے تو کسی محتاج نہیں ہے، پھر بھی ہمارا کام کا جو حصہ ہے ہم تعارف کراتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ حیدرآباد کی ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جس سے بات کرنے میں اور سننے میں آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم حیدرآباد جناب قیوم نصرت صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی شام ان لوگوں نے ہمیں دی الف نیوز کے نام کی، تو الف نیوز آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں گے۔ الف نیوز کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نصرت صاحب نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے آگے لے کر گئے، اور جو کہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بات بتاتا چلوں کہ قیوم نصرت صاحب چیمبر آف کامرس کا بھی حصہ رہے ہیں، اور ابھی حاضر پاکستان سول سوسائٹی حیدرآباد کے صدر بھی ہیں، اور باقی بات ہم ان سے بات کریں گے، ان کی زبانی جانیں گے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو آگے بنایا اور آج اس مقام پر ہیں تو کیسے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم، بتائیے گا کیا کہنا ہے۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت؟ سب سے پہلے تو میں الف نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت شام کا انعقاد کیا، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم الف کے ساتھ آج یہاں بیٹھ کر گفتگو کریں۔
जी अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी रहे हैं, अब बिजनेस के आप लीडर भी आप माना जाते हैं, बिजनेस के लीडर भी माने जाते हैं, जबकि आप राइटर भी हैं और इससे पहले भी आप मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ और दीगर उसमें आप काम करते हुए आए हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि माहौलियाती ज़िंदगी पर और ख़ास तौर पर हैदराबाद के लिए सिविल सोसाइटी ने क्या काम किया, आप लोगों ने क्या इकदाम किए, और अक्सर सिविल सोसाइटी में आने के बाद आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं और किन माहौल से आप गुजरे हैं, थोड़ा आप भी बताइए। देखें, पहले तो मैं आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू कर लूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा खासा वक्त गुज़रा है और वहाँ पे मैं अहम पोजीशन में काफ़ी अरसे तक जो है काम करता रहा। और मैं वहाँ बेसिकली जो मेरा ज़्यादा काम होता था वो पाकिस्तान के बजट के हवाले से होता था। हुकूमत पाकिस्तान को बजट तजावीज़ जो वो हमसे तलब करते थे, हम उन्हें बजट तजावीज़ बना कर देते थे, जिनमें से बहुत सी चीज़ें वो बजट में शामिल कर लेते थे और बहुत सी चीज़ें वो नज़रअंदाज भी कर देते। लेकिन ये कि हमारी ये कोशिश होती थी कि हम ताजिरों और सनतकारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम अपनी तजावीज़ दें, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम और पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने में ताजिर जो किरदार अदा कर सकता था, बहैसियत ताजिर रहनुमा मैं जो किरदार अदा कर सकता था, वो हमने एक तवील अरसे तक वो किरदार अदा किया। अच्छा, अभी आप सिविल सोसाइटी में चल रहे हैं, हैदराबाद में कुछ मसाइल ऐसे चल रहे हैं जो गैर एलानिया लोड सेटिंग है, एलानिया लोड सेटिंग के बाद भी आवाम को जो तंग किया हुआ, उनकी ज़िंदगी को असरन इन लोगों ने बना दिया है एसक्यू ने, तो उस पर कोई आपने इकदाम उठाए सिविल सोसाइटी के हवाले से? आप सदर भी हैं और अभी भी हैं, आप अक्सर काम करते हुए आए हैं हैदराबाद के लिए, इस हवाले से आप देखें, सिविल सोसाइटी का काम बेसिकली यही होता है कि वो अवामी मफादात के लिए जंग लड़े, अवामी मफादात को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, अवाम को जहाँ भी जुल्म व ज़्यादती का सामना है उनकी जुल्म व ज़्यादती का इज़ाला कराए। हैदराबाद शहर की में हमारी बदकिस्मती ये है कि हैदराबाद शहर में कोई ओन नहीं करता, ना यहाँ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सियासी, वो हैदराबाद को ओन करते ही नहीं हैं। उनकी मैनिफेस्टो में मुझे यूँ लगता है कि हैदराबाद नहीं है, लिहाजा हैदराबाद के मसाइल पर उनकी तवज्जो भी नहीं है, हैदराबाद के मसाइल हल करना वो चाहते भी नहीं है। लिहाजा मजबूरन लोग जो है ताजिर रहनुमाओं की जानिब, चैम्बर की जानिब या सिविल सोसाइटी या इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ उनकी नज़रें पड़ती है। हमें बेशुमार कंप्लेंट्स ऐसी मौसूल होती है जहाँ पर इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही होती है, जहाँ इंसान के बुनियादी हुकूक़ जो है वो सल्ब हो रहे होते हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह हो चुका है, तो लोगों को जो परेशानियाँ वो आकर हमसे कहते हैं, हम उन परेशानियों को इज़ाले के लिए जितना हमारे पास ताकत होती है हम उस ताकत के ज़रिए उन लोगों हुक्काम बाला के पास पहुँचते हैं और उनसे उन मसाइल को हल कराने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शख्सियात ऐसी हैं कि इस शहर में मुख्तलिफ़ हवालों से हमारी पहचान है। ताजिर रहनुमाओं के हवाले से भी हमारी पहचान है, सिविल सोसाइटी के हवाले से भी पहचान है, एज़ ए राइटर भी हमारी पहचान है, अखबारात में कालम लिखने के हवाले से भी लोग हमें जानते हैं। तो इंतज़ामिया में और पुलिस डिपार्टमेंट में अमूमन हमें वेलकम किया जाता है और हमारी शिकायत का इज़ाले के लिए वो कोशिश करते हैं, जहाँ तक उनके इम्कान में होता है कि वो उन शिकायत के इज़ाले की कोशिश करते हैं। अभी हैदराबाद में कुछ मसाइल ये भी हैं कि पीने का साफ़ पानी तक जो है ना लोगों को मैसर नहीं है। हैदराबाद के आप 12 नंबर की तरफ जाएं, ऊपर खुदाफिज बोर्ड की तरफ आप जाएंगे कि कुछ लोगों को ऐसे मसाइल दरपेश आते हैं कि उन लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, गैलनें उठा के दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर हैं। दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ तो अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रही है। तो दूसरी जानिब ये है कि रोडों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के मच्छर जो है जन्म ले रहे हैं, उससे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। क्या कभी आपने बल्दिया से जाकर म्यूनसिपल कमेटी से कोई इस हवाले से बातचीत की? या रोड टूट फूट का शिकार हैं, इसमें आपने कोई बात की? जहाँ देखें, इसमें जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उन तमाम ही रेलिवेंट डिपार्टमेंट से हम मिलते हैं। मैं जैसे आपने पानी के हवाले से बात की, तो पानी का मैटर वासा का है। वासा जो है पानी को आब रसानी और उसको जो है ना सीवरेज
ये दोनों डिपार्टमेंट वासा के पास है। पानी की वाकई ये सूरत हाल है कि बहुत से इलाकों में अव्वल तो पानी है नहीं, और अगर पानी वहाँ आता है तो वहाँ पे गंदा पानी आता है जिसमें सीवरेज का पानी शामिल है। बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साफ़ पानी मैसर है। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे अवाम भी किसी न किसी हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारे अवाम की ये हालत है कि वो बाज़ार से तो पानी ख़रीद कर पी लेते हैं, लेकिन वासा को बिल देने से बचते हैं, गुरेज करते हैं। उसकी वजह से वासा के पास फ़ंड्स की कमी है। अच्छा, बुनियादी तौर पर मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ, मेरे इल्म में ये बात है कि वासा के पास फ़ंड्स नहीं है। हमारी जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वजूद में आई है उस वक्त से ख़ास तौर पर ये हो गया है कि जितने भी टैक्सेस जो हैं वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वसूल करती है, लेकिन इसमें वासा का जो हिस्सा है वो वासा को नहीं पहुंचता। जितने भी कराची और हैदराबाद में बिल्डर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं या और दूसरे सेक्टर में, वो पानी की मद में और NOC की मद में जितना भी पेमेंट करते हैं उसमें वासा को इन्हें अदा करना चाहिए, वासा का हिस्सा, क्योंकि पानी की फराहमी वासा की ज़िम्मेदारी है। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में वासा पानी फराहम करता है। इसी तरह सीवरेज की इंतज़ाम वासा के सुपुर्द है, वासा को इसका इंतज़ाम करना होता है। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो है उनको हिस्से की पैसा उनको नहीं देते, उसकी वजह से वासा को परेशानी का सामना होता है। कुछ तो उसकी वजह से लोग पानी से भी महरूम है और सीवरेज का निज़ाम भी नाकिस है। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कोशिश करे और ख़ुद वासा भी अपने वसाइल को ज़िम्मेदारी के साथ बरोए कार लेकर आए तो मैं समझता हूँ कि इस शहर से पानी का और निकासी का मसला जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। जी, जैसे कि आपने जाना अभी बिज़नेस के हवाले से, जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आपका ताल्लुक़ रहा है, बिज़नेस के हवाले से हमने बात की। उसके बाद हैदराबाद सिविल सोसाइटी पाकिस्तान के आप सदर भी हैं, हमने उस हवाले से ही बात की। हैदराबाद के जो मसाइल हैं जो लोगों को दरपेश आते हैं, पानी का मसाइल है, गैर एलानिया लोड सेटिंग है और दीगर जो मामलात हैं, बल्दिया की नाकिस कारकर्दगी पर जो सवाल लोग उठाते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर चलती है। तो अलिफ न्यूज़ बनेगा इंशाल्लाह हैदराबाद की आवाज़, पूरे सिंध की आवाज़। अब थी बात माहौलियात ज़िंदगी पर, अब हम जाएंगे उनकी पर्सनल ज़िंदगी जो उन लोगों ने गुजारी, कैसे आप लेकर चले। आप राइटर भी हैं तो हम उसी हवाले से बात करेंगे। आपने बुक भी, एक किताब भी लिखी है जो है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, ज़ेर कलम जो है। और एक नई किताब आने वाली है जिसके अंदर बहुत अच्छा मजमून है, इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगा। अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ। अलिफ न्यूज़ के प्लेटफार्म है जो आपको जो है किताब से आगाह करेगा, और इंशाल्लाह इसी प्लेटफार्म से हम आपको उस किताब का नाम भी बताएंगे और आपको गिफ्ट भी करेंगे। अभी हम जाते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ। अच्छा, आप बताइएगा, आप राइटर भी हैं, आपको ये शौक़ कब से चढ़ा और कैसे आपको ये काम करूँ राइटर, या कोई आपके उस्ताद हैं, आपके सीनियर जिनके आप उस पर नक्शे कदम पर चलें, या आपको वैसे ही अपना शौक़ था? बहुत गिफ्ट था आपको? देखें, ये लिखने का काम मेरा स्कूल लाइफ से ही चल रहा है। मैं स्कूल लाइफ से लिख रहा हूँ। उसके बाद में जब मैं कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में, तो मेरी खुशकिस्मती है कि वहाँ मुझे मेरा हल्के अहबाब में मुझे जिन लोगों ने वेलकम किया उसमें यहाँ के बेहतरीन राइटर, शायर हजरात वो थे, और फिर हमारा एक ग्रुप बन गया। उनकी रहनुमाई हमतन मेरे साथ रही और मैं उनकी रहनुमाई के ज़रिए ही आगे बढ़ता रहा और तरक्की के मुख्तलिफ़ मनाजिल मैंने, हमारे जो सीनियर साथी हैं रिजवान सिद्दीकी साहब, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। यहीं पर ही जो है ना हिमायत अली शायर साहब थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। बिनिश सलीमी साहब थे और बेशुमार लोग हैं जिन मैं किन किन का नाम लूँ, बेशुमार लोग ऐसे थे। लिखी है ज़ेर कलम बुक भी आपने जो है लिखी है, ये सन 2019 के अंदर शाया हुई है। इसमें कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी, ये एक राइटर ही और लिखने वाला ही जानता है या फिर पढ़ने वाला इस बात को समझ सकता है। तो ये भी हम इनसे बात करेंगे कि इस बुक को लिखने में और इस बुक की पूरी जो है काम करने में, इसके अल्फाज जो थे और जो हम ख़रीदने में तो बहुत सस्ती है, मगर लिखने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि इसके अंदर एक दिली जुस्तजू जो होती है वो इंसान को आगे लेकर चलती है। पूरी ज़िंदगी का निचोड़, माहौलियात ज़िंदगी से लेकर जो अब तक माहौल चल रहा है वो इसके अंदर लिखा गया, और 19 तक का इसके अंदर सारा निचोड़ है, और आगे हम बात करते हैं, बताएंगे। अच्छा, ये बताइएगा आपको कितना वक्त इसमें लगा? देखें, ये किताब असल में मेरे मुख्तलिफ़ जो कालम मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात में जो लिखे हैं उन कालमों का मजमुआ है। मेरे अब तक तकरीबन 700-800 कालम जो है वो मुख्तलिफ़ अखबारात में छप चुके हैं।
ये जो किताब आपके सामने है ज़ेर कलम, इसमें तकरीबन 60 ऐसे आर्टिकल हैं जो 2018 और 19 के दरमियान लिखे गए हैं। उनमें से 60 को मुंतखब करके इस किताब को कंपाइल किया गया है। इससे पहले के जो मेरे मज़ामीन थे या मेरे कॉलम्स थे वो मैंने छोड़ दिए, ताकि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ क्राइसिस जन्म ले रहे थे, मुख्तलिफ़ सियासी तौर पर पाकिस्तान में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी। लिहाजा ज़रूरी था कि इन्हीं कालमों को फोकस किया जाए जो आज के हालात से मुताबिकत रखते हैं। आपका कहना है कि अभी आप एक नई किताब भी लिख रहे हैं जिसका भी नाम तो खैर डिसाइड नहीं हुआ है, उसके अंदर उन्वान क्या है, किस माहौल के ऊपर आपने वो किताब लिखी है, उसके आप कुछ अशार हमें बताएं। जहाँ देखें, वो किताब असल में माफियाज से मुताल्लिक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि वो हुकूमत वक्त से जब चाहते हैं जो चाहते हैं वो मनवा लेते हैं, और हुकूमत उनके सामने हमें बेबस नज़र आती है। इसकी मिसाल में आपको कल जो मेडिसन की कीमतें बढ़ी हैं, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मेडिसन मेरा भी एक डिपार्टमेंट है, मेरी मेडिसन फैक्ट्री थी, वो मैंने अपने बेटे के सुपुर्द कर दी। तो मुझे मालूम है कि मेडिसन में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है, मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर हम महंगी से महंगी प्रोडक्ट को भी देखते हैं तो उसकी कीमत भी चंद रुपयों से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में इस माफिया ने इस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत कर रखा है कि वो डॉक्टर्स को पैसे देते हैं और डॉक्टर से अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कराते हैं। उसकी वजह से आम मरीज़ जो है वो मजबूर होता है कि उसी कंपनी की प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए जिस प्रोडक्ट को डॉक्टर ने लिखा गया है, और इस काम के एवज़ डॉक्टरों को एक भारी रकम दी जाती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है हर साल अरबों रुपए जो है वो कमाती है। मैं आपको ये बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही, किसी इंडस्ट्री ने ग्रोथ नहीं किया सिवाय फार्मा के, और फार्मा का ग्रोथ भी जो है मोर देन 30% पाकिस्तान में है। ये इस बात की ज़मानत है और ये इस बात की दलील है कि फार्मा इंडस्ट्री ऑलरेडी जब इतनी गिरो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बेपनाह पैसा कमा रही है। जब वो पैसा कमा रही है तो आवाम के लिए हुकूमत को ये चाहिए था कि वो ये कीमत नहीं बढ़ाती, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में हुकूमत माफियाज़ के हाथों इतनी मजबूर हो जाती है कि वो कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाती है। इसी तरह आपका कहना ये है कि माफियाज़ के आगे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बेबस नज़र आती है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, और ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में यही है। ख़ुद अमेरिका में आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ माफियाज़ के सामने मल्टी नेशनल कंपनीज़ वहाँ जितनी भी है वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने अमेरिका में अपने पंजे जो है तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं उसके अंदर गाड़ रखे हैं, और इलेक्शन के दिनों में जितनी भी फंडिंग होती है इलेक्शन की वो वही मल्टी नेशनल कंपनीज़ करती है। और जब वो वहाँ पर जो भी पार्टी बरसर इख्तिदार आती है वो उन मल्टी नेशनल कंपनियों के मुफादात को पूरा करने में अपना किरदार अदा करती है। इसी तरह पाकिस्तान में जब इन माफियाज़ ने अपने जड़ों को इस हद तक मजबूत कर लिया है तो हुकूमत भी उनके मफादात को पूरा करने में अपना किरदार अदा करती है, और हुकूमत को वो इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान में भी ये माफियाज़ जो है ये फंडिंग जो है ना करते हैं और फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी पार्टी जीत कर आती है वो इनके मफादात को पूरा करती है। अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन आया जब आप किताब लिख रहे हो आपको कोई मुश्किलात दरपेश आई हो? कोई ऐसा दिन आपको याद? मैं समझा नहीं। कोई आपके पास लाइफ में कोई ऐसा दिन आया जिसमें आपको किताब में कुछ लिखते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो या मुश्किलात में दरपेश आपको आ रही हो? कोई ऐसा दिन आपके लाइफ में गुजरा है किताब लिखते हुए? देखें, ये तो एक राइटर के लिए एक रूटीन की चीज़ है। जब वो लिखता है तो उसके लिखने के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात आते हैं। जब मैं अखबारात में अपना कालम भेजता हूँ तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि कालम प्रिंट होने से पहले पढ़ा जाता है।
तो हुकूमत वक्त का पॉलिसी के तहत अमूमन जो है ना रुकावटें हमारे सामने आती है, और इंतहाई बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में आज भी, जिस वक्त मैं आपसे हम कलाम हूँ, आज भी एक अदीब, एक राइटर बहुत आसानी के साथ अपने तमाम ख़यालात सफ़ाए करतास पर नहीं ला सकता। उसको मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसके सामने मुख्तलिफ़ रुकावटें आएंगी। एडिटर, सबसे बड़ी रुकावट एडिटर होता है। एडिटर को जो थ्रेट मिलती है वो मुख्तलिफ़ माफियाज़ की जानिब से मिलती है, हुकूमत की जानिब से मिलती है। तो अखबारात वाले भी जो है उन थ्रेट का शिकार होते हैं और अपनी पॉलिसी को उसी हिसाब से तरतीब देते हैं। इससे जो माफिया काम करती है, इसके लिए रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने पड़ेंगे जो ये माफिया का कोई मुकाबला कर सकें या माफिया को रोक सकें? या हुकूमत खुद नहीं चाहती कि हम माफिया को रोकें, या माफिया इतनी हैवी हो गई है कि हुकूमत को मजबूर होकर घुटने टेकना पड़ता है? इसका कुछ सदेबाब तो होगा जो सामने कोई अपनी राय आप हमें। जी हाँ, देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम के तहत तो माफियाज़ को काबू नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इस निज़ाम में सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर नुमाइंदे जो मुंतखब होते हैं, उन नुमाइंदों के पस पुश्त यकीनन कोई ना कोई बड़ा ग्रुप होता है या कोई माफिया होती है। और उसके बाद में जब ये लोग जीत कर ऐवान इक़्तिदार में पहुँचते हैं तो वहाँ वज़ीर आज़म का इंतखाब या सदर का इंतखाब या स्पीकर का जो इंतखाब होता है, उसमें ज़ाहिर है कि इतनी आसानी से लोग वोट नहीं देते हैं। उसमें उन माफियाज़ का बड़ा अमल दखल होता है। माफियाज़ जिनको चाहती है उसी पार्टी के आदमी को जो है, या जो पार्टी अक्सरियत में आती है, उनको जो जब वोट देते हैं तो उसमें माफियाज़ का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अव्वल तो माफियाज़ के पैसों से ही जीत कर वो पहुँचते हैं, और उसके बाद में भी हुकूमत चलाने के लिए माफियाज़ की सपोर्ट उनको हासिल होती है। जी, जैसे कि आपने देखा, आप बिज़नेस लीडर भी रह चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो रियासत मदीना के हवाले से आप बात करिएगा। रियासत मदीना है और महंगाई उरूज पर है, और महंगाई का जिन भी बेकाबू है, जबकि जो इंसान जिस चीज़ से सेहतियाब होता है वो अद्वियात ही इतनी महंगी है कि गरीब की पहुंच से दूर है। आप थोड़ा यही बताइएगा, और हमारी बाशऊर कौम को, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के आवाम को भी आप ये अपना कोई अहम पैगाम भी दीजिए। देखें, रियासत मदीना के हवाले से तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब खलीफा मुंतखब हुए तो आपने ये बात कही थी कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूख से मरेगा तो उसका ज़िम्मेदार उमर बिन ख़त्ताब होगा। तो रियासत मदीना का तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है, जबकि हम पाकिस्तान में नाम तो रियासत मदीना का ले रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मदीने की रियासत की कोई बात भी, सिंगल बात भी जो है ना, हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। ये सिर्फ लफाजी है, हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। कौम को अपने लफ्ज़ों में कुछ पैगाम देना चाहिए। कौम को मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ दो बात वो अपने अंदर पैदा करें। सबसे पहले तो ये कि अपने बच्चों पर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें आला से आला तालीम दिलवाएं। आपके बच्चे अगर बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे, वो तालीम याफ्ता होंगे, वो टैलेंटेड होंगे, तो वो ज़िंदगी के हर शोबे में अपने आप को मनवाएंगे, अपने वजूद को मनवाएंगे, अपने मुल्क को मनवाएंगे, और पूरे दुनिया में वो अपना नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब इलेक्शन का मरहला आता है तो उस वक्त खुदा के वास्ते ना आप अपनी कौम को देखें, ना बिरादरी को देखें, ना पैसों के किसी लालच में आएँ, ना किसी और तरगीब को अहमियत दें। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप ये देखें कि आपके मसाइल को हल कौन कर सकता है, वो कौन सा उम्मीदवार है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो आपके मसाइल को समझता हो, आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, आपके दुख दर्द का साथी हो, उसे भी मालूम हो कि भूख क्या चीज़ है, उसे मालूम हो कि इलाज का सहूलतें आवाम को मैसर नहीं है तो उनके ऊपर क्या गुज़रती है, उन्हें मालूम हो कि रोटी कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
आप उन नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँ, वही लोग आपकी सही नुमाइंदगी कर सकेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि कयूम नुसरत साहब का कहना है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। जब वो राइटर बने तो स्कूल के टाइम से उन्हें शौक़ था लिखने का। किस तरीके से जब ये किताबें लिखते रहे तो कुछ मुश्किलात भी दरपेश आती रहीं। उन रास्तों से कयूम नुसरत साहब भी गुजरे हैं और आज भी अपने उस रवैये को लेकर चल रहे हैं। आज भी उसी तरीके से अपने कलम से वो लिखते हुए आए और लोगों को अवेयरनेस देते हुए आए। लोगों को एक अच्छी बात जो है, अपनी सोच, अपने दिल की बात और माहौलियाती ज़िंदगी में जो होता रहा है वो आवाम तक पहुँचाते हुए आएँ। और उसके बाद जो हैदराबाद में होने वाले दरपेश मसाइल हैं, जो पानी बुनियादी हमारा मसाइल है, पानी के ऊपर हमने बात की। यहाँ पर गैर एलानिया लोड सेटिंग है, उसके ऊपर हमने बात की। जो गैर एलानिया लोड सेटिंग की जा रही है, लोगों का कारोबार जो है तबाह होकर रह गया, उस पर भी हमने यहाँ पर बात की। और बिजनेसमैन भी आप रहे हैं तो बिजनेसमैन के हवाले से हमने बात की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप रहे हैं और अभी सिविल सोसाइटी पाकिस्तान हैदराबाद के सदर भी हैं, उस हवाले से भी हमने टोटल बात की। माहौलियाती ज़िंदगी में बात की। हैदराबाद के जो मसाइल हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं, उनको हमने उजागर किया। अलिफ न्यूज़ के प्लेटफार्म से हमने उजागर किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम अगला प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे जो हैदराबाद और पूरे सिंध के जो मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह हम उजागर करेंगे और ऐवान बाला तक हम और काम बाला तक पहुँचाने की अपनी कोशिश करेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।